वेलकम बैक व्यूअर्स। एक मेरी गेस्ट का पैकेज है, पहले वो चल के देख लेते हैं और उसके बाद मैं आपको उनसे मिलवाऊंगी। Sidra Iqbal is a celebrated public speaker and a youth icon of Pakistan, accredited with many esteemed accolades in the field of youth activism, economic and corporate matter and television media. She is the first and only Pakistani to win the English-speaking Union's International Public Speaking Championship in London, UK in 1999 amongst participants from over 48 countries. For this achievement, she was invited to the Buckingham Palace to receive her winner's certificate from His Royal Highness, the Duke of Edinburgh, Prince Philip. This summer, she became the first Pakistani to be invited as a judge to the same esteemed international pavilion, the ESU IPSC 2011, with co-judges like Lucy Hawkins, presenter for BBC World. Sidra Iqbal represented the Pakistani youth as an ambassador and a change activist at a variety of power-packed forums in Australia, Cyprus, Japan, Hong Kong, Turkey, Switzerland, UAE, UK and United States of America. At the same time, she made the rewarding transition to youth development and training and has to date several notable youth capacity building projects in her portfolio. In 2005, the Ministry of Education UAE invited Sidra to lead a leadership training program for her global initiative, Women as Global Leaders, at the Sheikh Zayed University, Dubai. The following year, Sidra was chosen to be one of the 20 international advisors to this annual program. Sidra was awarded a full scholarship by the ESU Commonwealth to a summer international relations program at Oxford, UK in 2006. She is also an alumni of the prestigious International Visitors Leadership Program by the US government. Sidra is a prominent television anchor person in Pakistan and has a number of signature shows and momentous coverages to her credit. Her shows have featured a number of VIP guests from head of states, policymakers, corporate heads and celebrated popular icons. Currently, she hosts and produces a youth-centric show on Business Plus called Mind the Gap with Sidra, which has climbed high on the popularity charts within a few weeks of its inception. Today, she's an entrepreneur and a founding managing director of Status Pro, an integrated brand PR communications firm. Their current clients include Sprite, Horlicks, and British Council Pakistan. She has also recently founded Blink, a training and mentoring consultancy. वेलकम बैक व्यूअर्स। आपने देख लिया पैकेज और अब आपको पता चल गया होगा कि मेरे साथ कौन है। आई स्वेयर मैं सिद्रा की मैंने ये सब चीज़ें मुझे नहीं पता सिद्रा ने क्या किया हुआ है क्या नहीं किया हुआ है, बट मैं पर्सनली बहुत सिद्रा से इंस्पायर्ड हूँ बिकॉज सिद्रा एक शो करती थी माँ के नाम से एंड इतना ज़बरदस्त शो होता था। पहले सिद्रा से मिले थे। सिद्रा इकबाल, होस्ट, पब्लिक स्पीकर एंड कंसल्टेंट। हाउ आर यू? Very well. How are you doing, Amna? Thank you so much for having me over this morning. Our pleasure. सिद्रा, सबसे पहले तो वाओ, लाइक बहुत ही माशाल्लाह माशाल्लाह। मैंने माँ वाला प्रोग्राम देखा था। I've seen you a lot of time, but वो जो एक प्रोग्राम था ना, उस प्रोग्राम से I think you were known for that. बहुत ज़्यादा जो हमारी माशरे की माएँ हैं, बहुत ज़बरदस्त शो था। अच्छा, सबसे पहले तो सिद्धा मुझे बताओ स्टार्ट कैसे, ये सब तो मैंने देख लिया। मीडिया, अगर मीडिया की बात कर रहे हो तो I started from this very studio. It always had a very nostalgic This was the feeling. same studio. This was the same studio. It was a few years back. मैं बल्कि in fact जब ये channel TV1 was coming through, so I remember sitting here for endless hours. हम ये set बना रहे होते थे and we were trying to come up with ways कि क्योंकि it's a small space, उसको कितना creatively हम इस्तेमाल कर सकते हैं. It was me and Asfar Rahman and of course our mentor Seema Tahir. उनके साथ जो बैठते थे and it was a morning show for the channel and that's how I started and it was a pure accident because I was initially looking after just the content design of the show. फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि obviously content कर रहे हो तो you need to have an input कि इसको आप you know दिखेगा कैसा, इसकी look and feel क्या होगी and eventually I just ended up hosting it and then I remember हमें on air गए हुए 3 या 4 दिन हुए थे. So 2005 का earthquake happened. We went on air on the 27th of September and the earthquake happened on the 8th of October. And all of a sudden the show had a different meaning because TV1 took an initiative of actually being a pioneer
and came forward with the drive to actually help the people who were affected. उस वक्त जो relief and rescue का काम हो रहा था तो सारे उसमें। फिर shows ही सारे ये इस Exactly, किस्म के and हो it रहे it was such a live wire at that time because लाहौर से फ़ोन आ रहे हैं, मुल्क के दूसरे इलाकों से फ़ोन आ रहे हैं, people just wanted to know कि हम किस तरह contribute कर सकते हैं। तो I think that taste of real television came through. अच्छा मुझे एक बात बताओ, ऐसे तरह पैकेज में हमने काफ़ी देख लिया, योर स्कूलिंग व्हाटएवर यू डन, लेकिन मुझे बताओ बचपन से ही डिबेट का और इन चीज़ों का शौक था? As my mother puts it, आमना मुझे लगता है कि she used to say कि तुमने अभी बोलना भी नहीं शुरू किया था and you used to be debating. Because Really? I used to be in my cot, I was trying to make sense of my world and I would just yap a lot and you know in the baby language continue talking. तो अम्मी को लगता था कि मैं हमेशा कुछ बन जाएगी बेटी। कुछ ना कुछ बोलती अच्छा रहेगी। यैपिंग तो सभी करते हैं, ज़्यादातर यैपिंग तो होती है, बट वाकई अगर सेंसिबल यैपिंग हो रही हो तो पेरेंट्स को पता चल जाता है कि बच्चे में कोई पोटेंशियल है। अच्छा फिर स्टार्ट ऐसे क्या स्कूल डिबेट्स और इन चीज़ों में? Well, my father was a debater. He was a very avid debater throughout his student life, his college life. Then he was very active in student politics back in the day when he was in college. तो वो मुझे लगता है कि कुछ DNA में था to be speaking and to be an orator. और फिर स्कूलिंग में उसको ग्रूमिंग मिली एंड आई जस्ट वाज वेरी अट्रैक्टेड टू द पोडियम ऑल द टाइम। अच्छा तो चाहे वो एलोक्यूशंस हो, डिबेट्स और हो। मुझे एक बात ये भी बताओ कि आपने इतने कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया, सबसे मेमोरेबल कौन सा रहा है? लाइक Well, a lot of people talk about the one that happened in London, which was an international championship, which was my first international championship because उसके बाद I went to the Asia Pacific English presentation contest in Japan and I also went to Cyprus for an international championship. लेकिन अगर आप पूछे कि सबसे ज़्यादा memorable was actually back in the day we used to have something called the Prime Minister's Shield. तो वो होता था पाकिस्तान भर की यूनिवर्सिटीज़ के लिए, इंक्लूडिंग यू नो टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़, यानी पाकिस्तान में जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको इनवाइट किया जाता है एंड दिस हैपन्स इन इस्लामाबाद। और इसमें तकरीबन कोई 167 यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट करते हैं। सो आई वाज एट DHA, आई वाज ओनली इन माय फर्स्ट ईयर, लेकिन क्योंकि DHA कराची यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है तो कराची यूनिवर्सिटी में पहले एक कंपटीशन कराया गया, सो आई वाज इनवाइटेड टू दैट और अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज नॉट इवन डूइंग माय डिग्री, आई गॉट सिलेक्टेड टू रिप्रेजेंट कराची यूनिवर्सिटी। अच्छा तो वो मेरे लिए मुझे आज सिद्रा आपको पता है, अच्छा सिद्रा का हमने काफ़ी पूछ लिया, सिद्रा ने इतना कुछ किया हुआ है कि वो तो फिर पूरा शो जो है हमारा उसी में निकल जाएगा। सिद्रा आज का जो टॉपिक है बेसिकली वी टॉकिंग अबाउट वुमेन रोल इन मीडिया, ठीक है, एंड उसके साथ साथ रोल मॉडल पे पहले बात कर लेते हैं। हर इंसान का एक रोल मॉडल होता है, सबसे पहले तो हु वाज योर रोल मॉडल? माई रोल मॉडल, अगर आप क्लोजर टू अ पर्सन की बात करेंगे, माई रोल मॉडल वॉज एंड इज़ एंड ऑलवेज विल बी माई मदर because I feel she's a complete woman because I've seen her go through a lot of ups and downs in her life। और जिस तरह हम कहते हैं कि एक इंसान को pillar of support बन के सामने आना होता है, तो I really admire her for her strength of character, the way she's groomed us, the way she's sacrificed। उन्होंने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं to bring us to the point where we are today। So hats off to my mother। So she's your role model। अब मुझे ये बताओ कि एक बच्चे की ज़िंदगी में ख़ास तौर पे आप जब बड़े हो रहे होते हैं, आपको रोल मॉडल, जैसे आपने कहा कि मैंने अपनी मदर को देखा, इतने सैक्रिफाइस किए, सब कुछ किया, रोल मॉडल के लिए सबसे ज़्यादा चीज़ जो है क्या इम्पोर्टेंट होती है एक बच्चे को इंस्पायर करने के? वेल आमना, इफ़ यू लुक एट इट, आज के बच्चे की अगर आप बात करें और हमारा बचपन अगर देखें तो इट वाज पोल्स अपार्ट। बिकॉज व्हेन वी वर ग्रोइंग अप वी वर स्टिल इंक्लाइंड टू लुक एट बुक्स। आई स्टिल रिमेंबर कि माई मदर जस्ट टू ग्रूम अस राइट और हमें वो नॉलेज पवेलियन देने के लिए, बिकॉज रिमेंबर वी वर ग्रोइंग एट अ टाइम जब इंटरनेट या गूगल नहीं होता था, कुछ भी तो मुझे अच्छी तरह याद है कि अम्मी कुछ भी किताबें बहुत ज़्यादा हमें ला के देती थी, हमारे मंथली मैगजीन्स लगे होते थे एंड आई यूज्ड टू लव द फैक्ट्स एंड द यू नो छोटी छोटी ट्रिविया इन्फॉर्मेशन जो उसमें होती है। देन शी वुड एक्चुअली ग्रूम अस एंड टेलिंग अस कि देखो इस बात का इंतज़ार ना करो कि यू नो टीचर कोई असाइनमेंट देगी एंड देन यू विल स्टार्ट लुकिंग फॉर इट। इफ़ यू सी एन इंटरेस्टिंग आर्टिकल, कट इट आउट, रीड इट एंड कलेक्ट इट। सो आई रिमेंबर हैविंग अ कलेक्शन ऑफ यू नो आर्टिकल्स ऑफ डेवलपिंग एंड ग्रूमिंग माई सेल्फ। आई थिंक ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपकी ओपिनियन फॉर्मिंग में। बिल्कुल। आज अगर मैं लोगों को देखती हूँ और स्पेशली यूथ को अगर हम देखें, दे
are more than 70 different television channels only in Pakistan. आपके पास इंटरनेट है, आपके पास रेडियो है, आपके पास प्रिंट मीडियम है, और ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे ओपिनियंस को, हमारे ख़यालात को, हमारी ड्रीम्स को उन पे फ़र्क पड़ रहा है इससे। जस्ट अगर हम कल की बात करें, जो नेटो फोर्सेस की स्ट्राइक हुई है पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ में, इट डज सेंड अ मैसेज, एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल आर स्टिल स्ट्रगलिंग विद द थॉट कि हम क्या कर रहे हैं, अगर हमारी सॉवरेंटी है, वी आर अ पावरफुल स्टेट, देन व्हाट इज दिस व्हिच इज हैपनिंग, एंड दे एक्सपेक्ट द गवर्नमेंट एंड द स्टेट टू टेक एन एक्शन, एंड आई थिंक इट्स हाई टाइम दैट वी डू दैट। बिल्कुल। अच्छा देखो, कुछ बच्चों का ठीक है रोल मॉडल होता है, सब कुछ होता है। अब आप माशाल्लाह आपको हर अपॉर्चुनिटी मिली, अब ज़िंदगी में माशाल्लाह माशाल्लाह जितनी अपॉर्चुनिटीज़ मिली आपने अवेल भी की। अब वो बच्चे जो टैलेंटेड हैं, जिनके पास सब कुछ है करने के लिए, लेकिन मौक़े नहीं है या उनके पास वो रिसोर्सेज नहीं है। आना, आई बिलीव कि अगर आप यूथ की बात करते हैं, everyone has opportunities. सिद्रा, मैं आपको थोड़ा सा रुकूंगी, I'm sorry, You have to go for a break? I have to take a call. Okay. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रही हैं? जी, मैं हुमा ताहिर बात कर रही हूँ। जी हुमा, क्या कहेंगी? जी, ये सिद्रा इकबाल आई हैं आपके पास। हाँ जी। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ, आई एम वेरी थैंकफुल कि आई और हमें बड़ा वुमेन्स के लिए बड़ा एक अपॉर्चुनिटी दिखा रही है कि वुमेन्स को क्या किरदार अदा करना चाहिए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच हुमा। के लिए, पाकिस्तान के लिए। बहुत आई एम अ वेरी मैरिड वुमेन एंड आई हैव टू डू समथिंग फॉर माय कंट्री एंड स्पेशली फॉर द वुमेन। ठीक है, सही। तो हुमा आप क्या करती हैं? गाइडेंस बिकॉज आई एम अ हाउसवाइफ नाउ, अच्छा, बट आई वांट टू डू समथिंग। हुमा आपने क्या पढ़ाई की हुई है? हैव यू स्टडीड समथिंग? आपने काम किया था? I have done my graduation from St. Joseph's College. ओके अच्छा। ओके, और इसके बाद आपने यू डिड नॉट स्टेप इनटू द वर्क फील्ड, आपकी शादी हो गई थी, आपने काम? जी 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 जी, जी जी। ना, मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं, बड़े हैं, माशाल्लाह। लेकिन अब मैं कुछ करना चाहती हूँ। बिल्कुल सही हुमा, थैंक यू सो मच फॉर दैट कॉल। और सबसे पहले तो मैं आपको यही कहूँगी कि इट्स ऑलवेज हार्टनिंग टू लिसन फ्रॉम पीपल लाइक योर सेल्फ, और बहुत अच्छा लगता है कि जब एक्नॉलेज किया जाता है, और आपका जज्बा देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। आई थिंक देयर इज अ लॉट दैट यू कैन डू डिपेंडिंग ऑन यू नो कि आपके सर्कमस्टांसेस, आपका वर्क डे कैसा गुजरता है। अगर आप टाइम स्पेयर कर सकती हैं तो इट कुड बी दैट यू वांट टू गो बैक टू कॉलेज, आपको ही हो सकता है डिग्री और कर लें, आप इंटरनेट पे रह के फ्लेक्सी टाइमिंग पे काम कर सकती हैं, या फिर इफ़ यू जस्ट वांट टू गेट अ टेस्ट कि भाई मुझे इतना अरसा हो गया, मैं तो घर पे थी, मुझे नहीं पता कि अब वर्क लाइफ कैसी है, तो स्टार्ट वॉलंटियरिंग। बहुत सारे I am interested. जी, I am interested in volunteering. हाँ, I think you should go for it. interested in social working. आप यही ना अपने पसंद की कोई फील्ड सेलेक्ट कर लें, चाहे वो और health- सोचने से ज़्यादा अच्छा है कि आई थिंक यू शुड गो फॉर इट। आप घर, अगर आपके बच्चे बड़े हैं तो आई थिंक आपको कुछ करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए, और ख़ास तौर पे औरतों के लिए तो जब भी कोई चीज़ करनी हो फ़ौरन आपको कर लेना चाहिए। थैंक यू फॉर कॉलिंग। You are on the website or somewhere, Sidra जी Iqbal? हुमा, यू कैन रीच मी ऑन माई फेसबुक पेज, मेरे नाम से पेज है और मेरी तस्वीर लगी हुई है, तो आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर Thank you. कॉलिंग, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। सिद्रा ने काफ़ी अच्छी एडवाइस उनको दी, और इसी तरह ख़वातीन अगर कॉल्स करें और टीवी शो देख के ही अपने आप को, अपना जज्बा बढ़ाएं तो बहुत अच्छा है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, हम बातें करते रहेंगे सिद्रा से। विल बी राइट बैक।